والصلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا ليوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والواصل والصادقين وقول الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ماہ محرم کی تیسری تاریخ اس طرح سے یہ دن گزر رہے ہیں. دن گزرتا ہے رات آتی ہے رات جاتی ہے صبح ہوتی ہے. اسی طرح سے 10 محرم کا دن آ جائے گا. جس آیت کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد ہو رہا ہے قل اطیعوا اللہ و رسول سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. جب انسان اطاعت کرے گا تو صرف رسول کی اطاعت نہیں کرے گا, اللہ کی بھی اطاعت کرے گا, اس کے رسول کی. اولي الامر منکم اور جو اولي الامر لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کریے. جو صاحبان ایمان ہیں ان کی بھی اطاعت کریے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آپ پر واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت کریے اور اس کے رسول کی اطاعت کریے. ابھی عزیزان گرامی کہ کائنات میں جتنے نبی آئے ہیں سب نے اطاعت کی ہے. آخری نبی ہمارے پہلے آئے ہیں ظاہر اور باطن دونوں طرح سے, لیکن اللہ کی طرف سے آخری نبی اس لیے بھیجے گئے کہ یہ دیکھو یہ سردار ہیں, ان پر ہم نبوت کو ختم کر دیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا امامت کا اور تا قیامت تک رہے گا سلسلہ. ایک نبی ہے جو آسمان پر چلا گیا, ایک امام ہے جو پردہ غیب میں چلا گیا. اللہ اپنے نبی سے جب بھی مخاطب ہوا ہے جناب آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ, جہاں چاہو وہاں رہو. آدم علیہ السلام جاؤ. نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے اتر آؤ. جب کشتی پہنچ گئی ہے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا, ہم اس کی جزا دیں گے, آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آپ نے پوری کی, اس کی جزا ہم آپ کو دیں گے. جناب موسیٰ سے اللہ نے گفتگو کی. موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ میں خدا ہوں, میں خدا بول رہا ہوں. موسیٰ نے بات سنی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہا عیسیٰ دیکھو ہم تمہیں آسمان پر اٹھا لیں گے. جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. خذل کتاب ہے اور جناب یحییٰ کو کتاب دی گئی بے قوتی, قوت کے ساتھ اس کو پکڑنا, مضبوطی کے ساتھ. اب ذرا انصاف سے بتائیے جتنے نبیوں کا ذکر ہوا ہے, آدم جنت میں رہو, ابراہیم ہم تمہیں جزا دیں گے, نوح اپنی کشتی سے اتر آؤ, موسیٰ سے خدا نے باتیں کی ہے, عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھائے گا اور جناب یحییٰ کو کتاب دی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. اب ذرا بتائیے کہ جتنے نبیوں کا اللہ نے نام لیا ہے تو جیسے چاہے اللہ لے سکتا ہے. اے ابراہیم سنو, اے موسیٰ سنو, اے آدم سنو, لیکن اپنے حبیب کو یہ کہہ کے نہیں پکارا اے محمد سنو. یا ایھا المزمل, اے مزمل سنو. یا ایھا الرسول, اے رسول. یعنی القاب بتائے ہیں, نام لے کے اپنے نبی کو نہیں پکارا ہے. اے یاسین, اے سید و سردار, طٰہٰ پاکیزہ اور پاک رہنے والے, طیب و طاہر. آپ ذرا بتائیے کہ آدم کا نام لیا گیا اے آدم, اے محمد کا نام لیا گیا. کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے محمد کا نام اس طرح سے لیا ہے, کہا نہیں لیا ہے. قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے جب بھی نام لیا ہے تو یا ایھا الرسول بلغ کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. اے رسول ان سے کہہ دیجیے قل یا ایھا الکافرون, ان کافروں سے کہہ دیجیے اگر ایمان لائیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا. جب بھی مخاطب اللہ ہوا ہے تو یا کہہ کے کہا ہے.
यानी यूं कहूँ कि अलकाब लेके नाम लिए गए हैं रसूल के, या अय्युहल मुदस्सिरो, या अय्युहल मुज़म्मिलो। मुज़म्मिल के मतलब क्या है? का चादर लपेटने वाला। मुदस्सिर के मतलब क्या है? का कमली लपेटने वाला। जितने हजरात बैठे हैं, चादर के माने क्या है? का कमली लपेटने वाला। अब जरा हिसाब से बताइए, जो मोहम्मद के ऊपर चादर लिपटी है, क्या वो अल्लाह का हबीब नहीं है? चादर हबीब नहीं है? क्या वो महबूब बंदा नहीं खुदा का? अल्लाह का रसूल क्या वो महबूब नहीं? का महबूब है। का चादर भी महबूब हुई। जो रसूल के बदन पे लिपटी हुई है वो भी चादर खुदा की महबूब है। महबूब है। जो कम्बल ओढ़े हुए वो भी महबूब है। अब जरा हिसाब से बताइए, जब सर्दी आती है तो हम 8 घंटा मुश्किल से 2 घंटे तक चादर ओढ़ते हैं। जब सोने चले जाते हैं चादर रख देते हैं, जब सुबह उठते हैं तो कम्बल ओढ़ लेते हैं, जब रात में हम सोते हैं तो कम्बल ओढ़ के सोते हैं, और जब उठ जाते हैं तो चादर लपेट लेते हैं। अब जरा हिसाब से बताइए, जो चादर में मोहम्मद को लपेट के रखे तो क्या वो खुदा के हबीब नहीं है? वो खुदा की हबीब नहीं है? का हबीब है। तो अब जरा इंसाफ से बताइए, जो 12 बरस अबू तालिब ने मोहम्मद को अपनी आगोश में पाला तो क्या वो हबीब नहीं है? सलवात पढ़े बर मोहम्मद। 6 घंटा 8 घंटा तक अगर मोहम्मद चादर में लिपटे हुए हैं, कम्बल में लिपटे हुए हैं, तो चादर वो खुदा की महबूब हो गई। और महबूब हो गई चादर जो नबी से मस हुई, नबी को लिपेट लिया 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, तो चादर वो खुदा की महबूब हो गई। और रसूल खुदा को जनाब अबू तालिब ने 12 बरस पाला है, वो काफिर कैसे हो सकते हैं? अज़ीज़ान गिरामी, वो काफिर कैसे हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आयत पढ़ी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए हबीब, हमने आपको शाहिद बनाया, नज़ीर बनाया, मुबश्शिर बनाया। शाहिद के मतलब गवाही देने वाला, मेरा हबीब गवाही देने वाला। फिर उसके बाद अल्लाह ने अपने नबी को शाहिद भी कहा और गवाही देने वाला भी कहा। अब 12 बरस तक जनाब अबू तालिब ने रसूल को पाला। 12 बरस तक का ये एहसान कम है? तो अल्लाह एहसान नहीं चाहता, एहसान का बदला दे। जिस आयत को मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया था, उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ये आयत है, आयत आपको दिखा दे रहा हूँ। या अय्युहन नबियो, जब भी अल्लाह मुखातिब हुआ तो ये नहीं कहा ऐ मोहम्मद, जैसे हमने कहा था इब्राहिम का नाम लिया। अल्लाह जिसे चाहे अपने नबी को नाम ले सकता है, लेकिन अपने हबीब को नाम लेके नहीं पुकारा है। या अय्युहल रसूल कहा है, या अय्युहल मोहम्मद कहा है, या अय्युहल नबी कहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, या अय्युहल यासीन कहा है। जब भी कह के पुकारा है तो या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अदब के साथ पुकारा है, ये हबीब है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइअन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ये बताइए, ये जो अल्लाह का नबी आया है, नबी भी है, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है, बशारत देके भेजा है, गवाही देने वाला भेजा है। और दाइअन का मतलब होता है कि हम तुम्हें दावत देने वाला भेजा है, दावत देने वाला भेजा। और सिराजन मुनीरा के मतलब क्या है? का नूर देने वाला, नूर भेजने वाला। सिराज कहते हैं सिराजन मुनीरा, रोशन चिराग। क्या मोहम्मद का वो चिराग, मोहम्मद वो चिराग है, रोशन सितारा है? का नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है जो तर्जुमा करते हैं, सिराजन मुनीरा का मतलब ये नहीं है कि रोशन चिराग। इसका तर्जुमा ये है, सिराजन मुनीरा का मतलब कि नूर देने वाला। मोहम्मद नूर देने वाले हैं। अब जरा इंसाफ से बताइए, जो मोहम्मद नूर दे रहे हैं तो क्या वो खुद नूर नहीं है? इसका मतलब वो भी नूर है। अब जब वो नूर है तो कोई इंसान बहस न करे कि मोहम्मद अब नूरी कैसे हो गए। जो नूर देने वाला है, जो नूर बांटने वाला है, वो नूरी कैसे नहीं हो सकता? हम एतराज करते हैं, लोग एतराज करते हैं कि मोहम्मद नूरी कैसे हो गए। जो नूर बांट रहा है वो नूरी कैसे नहीं हो सकता? सलवात पढ़े जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इस तरह से 12 साल तक परवान चलाया। मौला कायनात से कहा, आप इतने लोग बैठे, अगर कोई जनाब अबू तालिब को काफिर गए तो उनके वक्त तुरंत ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए।
भाई आप क्यों कह रहे हैं? या तो आप उस वक्त जवाब दीजिए, या अगर जवाब देने की ताकत है तो दीजिए जवाब। जनाब अबू तालिब को कह रहे हैं, अली के बाप को, या अली आपके बाप जहन्नमी है, अबू का फिन्नार, आपके बाप जहन्नमी। 3-4 मरतबा का अली सुनते रहे। एक ऐसा वक्त आया, एक शख्स फिर कह रहा था, या अली अबू का फिन्नार, आपके बाप जहन्नमी है। तो उसी वक्त मेरे मौला ने फरमाया, अना कसीमुल जन्नते वन्नार, मैं जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला हूँ। अना कसीमुल जन्ना, मैं जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला हूँ। अब जरा इंसाफ से बताइए, जो अली जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है वो अपने बाप को जहन्नम भेजेगा? अब दूसरे इतराज करते हैं कि जनाब अबू तालिब जहन्नमी है। कहा मेरे बाप पे इतराज न करिए, अपने बाप को देखिए, तुम्हारा बाप कौन है? जन्नत जहन्नम तो अली बांटने वाले। अब ये जो सिराजन मुनीरा है, ये खुदा का नूर है, पहला चिराग है। दूसरा चिराग कौन है? का सूरज। सिराजन वहाजर सज्जाजर, इसका मतलब है लौ वाला चिराग, तो सूरज निकलता है, ये चिराग है, लौ देता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने एहसान नहीं चाहा जनाब अबू तालिब के घर में पले हैं मोहम्मद का चिराग है। का देखिए अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा है कि हम एहसान आपका नहीं लेना चाहते। कुरान में अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। का घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो चश्मो चिराग है, ये मोहम्मद मेरा चिराग है ना। अल्लाह का कोई बंदा नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये चिराग है क्या? का एहसान का बदला नहीं लेना चाहते। का देखो ए अबू तालिब के बेटे, ये जनाब अबू तालिब देखो, मैं एहसान लेना नहीं चाहता हूँ, अल्लाह है। का देखो तुम्हारा नूर मेरे घर में आएगा और हमारा नूर तुम्हारे घर में जाएगा। यूं जुमला बदल के अर्ज करूं कि तुम्हारा चिराग हमारे घर में आएगा, हमारा चिराग तुम्हारे घर में आएगा। ऐसा बात अबू तालिब के घर में चिराग बन के गए। अबू तालिब का बेटा खुदा के घर में चिराग बना। अब अज़ीज़ान गिरामी, मोहम्मद का कोई मुकाबला कर सकता है? का कोई नहीं कर सकता। जब ओहद के मैदान में जब नबी गए हैं और नबी के साथ असहाब भी गए थे, और जाने के बाद जब जंग शुरू हुई तो लोगों ने नारा बुलंद किया कि मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद कत्ल हो गए। जब नाम सुना कि मोहम्मद कत्ल हो गए तो सहाबा छोड़कर भागे। नबी का साथ छोड़ने वाले तो चाहने वाले थे, नबी का साथ छोड़ दिए। एक मर्तबा अली वहीं पर रुके, पूछा आप क्यों नहीं गए? कहा या नबी अल्लाह, आप अगर मैं चला जाता तो ईमान के बाद मैं कुफ्र अख्तियार कर लेता, इसलिए नहीं गया। एक मर्तबा अली ने एक हाथ से मोहम्मद को बुलंद किया, हादा मोहम्मद, ये मोहम्मद है, हादा मोहम्मद, ये मोहम्मद है, हादा मोहम्मद, ये मोहम्मद है। अब जब दुनिया वालों ने देखा, जो भागे थे उन्होंने भी देखा, ये तो मोहम्मद जिंदा है। अभी नारा बुलंद हुआ था कि मोहम्मद कत्ल हो गए। का तुम घबरा रहे थे, तुम डर रहे थे, मोहम्मद का साथ नहीं दे रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। यानी नबी की जान की कीमत नहीं, अपनी जान की कीमत है, अपनी जान की कीमत है। अगर नबी तुम्हें मैदानों में ले जाए तो पहले अपनी जान देना, फिर नबी की जान जाएगी। यहाँ तो ये कर रहे हैं कि पहले नबी शहीद हो, बाद में हम कत्ल किए जाए। एक सलवात पड़े पर मोहम्मद, एक मंजिल तक ले जाना, एक मंजिल तक। कहा मोहम्मद, ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है। अब लोग आना शुरू किए, मोहम्मद तो कत्ल हो गए, मोहम्मद जिंदा कैसे है? आवाज परवरदिगार आई, ये अबू तालिब के बेटे, ये एहसान है आपका कि मेरे मोहम्मद को एक हाथ से बुलंद किया है। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है कि ओहद के मैदान में जब नबियों का साथ छोड़ा, जब नबी का साथ छोड़ के लोग भागे तो अबू तालिब के बेटे ने अभी जो चिराग का मसला हल किया था ना, कि एक चिराग मोहम्मद का चिराग अबू तालिब के घर में जलेगा, अबू तालिब का चिराग अल्लाह के घर में जलेगा। अब बात वाज़ेह हो गई। अब यहाँ पे आपको हम एक बात
اور ایک منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ابو طالب کے بیٹے نے جیسے نبی کو اٹھایا کہا ہاذا محمد، یہ محمد ہے، آواز پروردگار آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اے ابو طالب کے بیٹے میرے محمد کو ایک ہاتھ سے بلند کیا ہے، اسی محمد کے ذریعے سے غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھ سے بلند آپ نے محمد کی پرورش کی ہے، آپ کے ہاں محمد ہمارا چراغ ہے، یعنی تمہارے گھر کو روشن کرنے والا میرا محمد ہے اور ہمارے گھر کو روشن کرنے والا علی ہے۔ تو یہ احسان نہیں لیا اللہ نے، اور جب احد کے میدان میں آئے تب بھی احسان نہیں لیا۔ ابو طالب کے بیٹے اگر میرے محمد کو ایک ہاتھ سے بلند کیا، اسی محمد کے ذریعے سے غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھ سے بلند کروا۔ یہ احسان ہے جناب ابو طالب کا احسان اللہ لینا نہیں چاہتا، احسان کا بدلہ دے دیا کہ میرے محمد کو ایک ہاتھ سے بلند کیا، تیرے بیٹے کو میں نے دونوں ہاتھ سے بلند کروایا اپنے محمد کے ذریعے سے۔ ہم لوگوں نے وہاں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جب نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ سب پر واجب ہے نبی کی بات ماننا، جو نبی کی بات نہ مانے وہ کافر ہو جائے۔ وہیں پر ایک شخص نے انکار کیا، انکار کیا، پھر جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے یہ جو مولا بنایا یہ اپنی طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ میرا محمد وحی کے بغیر کلامی نہیں کرتا، وحی کے بغیر کلامی نہیں کرتا، یہ اپنی طرف سے بنا یا خدا کی طرف سے؟ یہ تو بنے خدا کی طرف سے۔ اگر آپ اپنی طرف سے بنائے یا خدا کی طرف سے بنائے تو اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب نازل ہو۔ جیسے اس نے عذاب طلب کیا، ظاہر سی بات ہے جب ہم دعا طلب کرتے تو ہماری کبھی کبھی دعائیں پوری ہوتی ہیں، اس نے عذاب وہی پر طلب کیا۔ جیسے کہا پروردگار مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، جیسے ہی طلب کیا فوراً آسمان سے پتھر نازل ہوا۔ پتھر جیسے ہی نازل ہوا دو ٹکڑے ہو گئے۔ حارث تھا، حارث ایک دو نہیں، دو حارث ہے، ایک غدیر کے میدان میں، خیبر کے میدان میں، ایک غدیر کے میدان میں، خیبر کے میدان میں، اور جب بھی مقابل میں آیا ہے تو علی نے مارا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہاں پہ علی کا دشمن نہیں، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہوگا اسے علی ماریں گے، اور جو علی کا دشمن ہوگا اسے اللہ مارے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اپنی طرف سے بنا ہے یا خدا کی طرف سے؟ اور میرا محمد وحی کے بغیر کلامی نہیں کرتا۔ آسمان سے پتھر نازل ہوا، جو اللہ کا دشمن ہے اسے علی ماریں گے، اور جو علی کا دشمن ہے اسے اللہ مارے گا۔ غدیر میں اللہ کا دشمن آئے، علی کا دشمن آئے، اور خیبر کے میدان میں وہ اللہ کا دشمن تھا، یہاں پہ علی کا دشمن ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، جو علی کا دشمن ہے اسے خدا مارے گا، اور جو خدا کا دشمن ہے اسے علی مارے گا۔ اب بات واضح رکھیے گا، ذہنوں میں محفوظ کریے گا۔ اب جو علی کو نہ مانے اس نے خدا کو نہیں مانا، اگر جو علی کو برا کہا اس نے خدا کو برا کہا، جس نے علی کو برا کہا اب اس نے خدا کو برا کہا۔ تو خیبر کے میدان میں ایک حارث آیا علی کے مقابل میں، اسے کس نے مارا؟ علی نے۔ کہا یہ اللہ کا دشمن تھا، کا انکار کر رہا تھا، کہا اللہ کی اطاعت کر لے، نبی کو نبی مان لے، کہا تمہارا نبی ہمارا نبی ہمارے لیے۔ جب انکار کیا تو وار نہیں کیا، کہا وار نہیں کیا، پہلے اصلاح کیا کہ اب سدھر جائے، اب سدھر جائے۔ محمد میرا یہی تو بتا رہا تھا یہ مسلمان اب سدھر جائے، اب سدھر جائے۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ سدھرے تو اب کیا سدھریں گے؟ صلوات پڑھے بر محمد۔ یہودی خیبر کے میدان میں تھے، جب مسلمان جاتے تھے تو یہودی لوٹ لیتے تھے انہیں سب۔ خیبر کے میدان میں انہیں لوٹ لیا جاتا تھا،
یہ شکایت نبی تک پہنچی اور پہنچنے کے بعد لشکر تیار ہوا، علی کے نبی کے ساتھ گئے۔ خیبر فتح ہونا ہے 40 دن میں۔ نبی نے حکم دیا جب خیبر میں پہنچنے کے بعد جاؤ چل فتح کرو۔ گئے تھے فتح کرنے کے لیے، جو خیبر کا در تھا اس پر مرحب بیٹھتا تھا۔ پہنچنے کے بعد کہا کیا کرنے ہے؟ کہا جنگ کرنے ہیں۔ مرحب نے کہا آؤ، ادھر سے آواز جاتی تھی آپ زحمت نہ کریے ہم خود ہی جاتے ہیں واپس، آپ زحمت نہ کریے ہم خود ہی جاتے ہیں۔ جب نبی کے پاس پہنچے، کیا بھائی کیا بات ہوئی ایسی؟ جنگ فتح نہیں ہوئی۔ تو پھر آخری دن بھیجا، 39 دن تک لگاتار یہ جاتے تھے چلے آتے تھے۔ مرحب کھڑکی سے سر نکالتا تھا کہ آؤ، ادھر سے آواز جاتی تھی آپ زحمت نہ کریے ہم خود ہی جاتے ہیں۔ نبی نے پوچھا جنگ فتح کیوں نہیں ہوئی؟ لشکر کہتا تھا کہ سردار بھاگا، سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، نہ تو سردار بھاگا نہ تو لشکر بھاگا، یہ تو گھوڑے ہی بھاگا تھا۔ اب جسے گھوڑے کی لگام نہ سمجھے اسے امت کی بہار دیجیے۔ آ گئے 40ویں دن علی خیبر کے میدان میں۔ خیبر کے میدان میں جب علی پہنچے ہیں تو یہودی ایک عالم تھا، وہ ستارہ پرست کا علم رکھتا تھا، جو ستارہ نجوم ہے نا اس کا علم رکھتا تھا۔ اس نے پڑھ لیا، اس نے پڑھا دیکھا کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جو آج بھاگے گا، یہ آج بھگا دے گا۔ ایک مرتبہ پوچھا یہودی سے، یہودی نے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ اب میرا نام علی ہے۔ یہودی سے بتایا میرا نام علی ہے۔ جب مرحب نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا حیدر۔ کہا یہ کس لیے پوچھا گیا؟ یہودی نے اس لیے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ مرحب سے علی نے اپنا نام بتایا حیدر، یہودی سے بتایا میرا نام علی اور مرحب سے بعد نام اپنا بتایا حیدر۔ کہا دیکھیے علی نے اس لیے بتایا کہ جو عالم بیٹھا ہوا تھا اس کے علم میں تھا، مرحب کے دل میں تھا کہ حیدر نام کے سے نہ لڑنا، جو حیدر کا نام کا شخص ہوگا اس سے نہ لڑنا۔ اب جب اس نے کہا یہ کون حیدر ہے؟ یہ حیدر کرار ہے۔ جب خیبر کے میدان میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد علی نے پتھر پہ علم گاڑا تو اس نے دیکھا کہ ستارہ جو تھا وہ گردش کرنے لگا، پھر گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر علم پتھر پہ گاڑا، پھر اکھاڑا۔ وہ دیکھتا رہا یہ ستارہ گردش کیوں کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھ گیا کہ یہ ستاروں کے اشارے سے نہیں چلتے بلکہ ستارہ ان کے اشاروں پہ چلتا ہے، ستارہ ان کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ جب مرحب نے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا؟ کہا مرحب۔ جب مرحب سے پوچھا گیا، مرحب نے کہا کہ میرا نام مرحب ہے۔ علی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ کہا حیدر۔ تو ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر کے نام سے نہ لڑنا۔ اب جب کھڑکی سے سر نکالا، جو 39 دن تک بھاگتے تھے، آپ زحمت نہ کریے ہم خود ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، مرحب نے کہا کیا کرنے ہے؟ کہا جنگ کرنے ہے۔ کہا آؤ۔ ادھر علی نے کہا آ جا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں، علی نے کہا آ جا، مقابلہ ہو گیا۔ اب ادھر سے خیبر سے چلا۔ ایک مرتبہ ماں نے تاکید کی تھی کہ حیدر کے نام سے نہ لڑنا۔ شیطان پہنچا کہ تمہیں معلوم ہے حیدر کے نام کے کتنے شخص ہیں؟ عورتیں کیا کہیں گی تمہیں، تم اتنے بہادر ہو، لوگ ہنسیں گے تم پر، اتنے بہادر ہونے کے باوجود حیدر سے گھبرا رہے ہو۔ یہ حیدر وہ نہیں ہے، وہ دوسرا حیدر ہے کوئی۔ یہ مقابل میں پہنچا، شیطان ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ جب یہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد علی نے اسے امان دی اور امان دینے کے بعد بتایا کہ یہ دیکھو یہ خدا ہے، اسے مانو، جو تمہارے نبی ہیں وہ میرے نبی ہیں۔ کہا نہیں، جو ہمارے نبی وہ تمہارے نہیں ہیں، تمہارا نبی الگ ہے ہمارا نبی الگ۔ وار نہیں کیا، یہی تو شریعت کا دستور ہے اور قانون بھی ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی ہو تو اپنی طرف سے پہلی غلطی نہ کرنا۔ علی نے یہی نہیں کیا خیبر کے میدان میں۔ جب مرحب للکارا علی کو تو علی نے تلوار نکالی، پہلا وار ادھر سے مرحب کی طرف سے ہوا، دوسرا وار حیدر کی طرف سے ہوا، اور جب وار چلی ہے ذوالفقار حیدر کی تو مرحب کے 2 سر ہوئے، یعنی 2 دھڑ ہوئے، ادھر آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا۔ جب تولا گیا، ناپا گیا تو دیکھا کہ برابر دھڑ ہے، نہ ادھر ایک پلہ زیادہ ہے نہ ادھر ایک پلہ زیادہ۔ کہا دیکھیے یہ حیدر کوئی اور نہیں ہے، کہا ید اللہ نے مارا ہے، عین اللہ نے دیکھا ہے۔
अब जरा समझ में आया जो ईरान ने खैबर की मिसाइल मारी थी, क्या करें। वो कौन लोग थे? कहा यहूदी तो है, वो यहूदी है। जो आज जंग जिससे हो रही है वो यहूदी लोग हैं। नेतन्याहू कौन है? यहूदी है। यहूदियों से जंग हो रही है। तो खैबर का मैदान वहां था, खैबर का मैदान ईरान है, और खैबरी वाली मिसाइल वहां पहुंचाई। ये यहूदी यहाँ भी थे और वो यहूदी वहां भी है। जो अली से मुकाबिल में आया वो भी यहूदी, जो खैबर के मुकाबिल में जो भी आया अली के वो यहूदी थे, जो ईरान के मुकाबिल में आया वो भी यहूदी। और यहूदियों के पास वही मिसाइल भेजी, कहा ये खैबर की मिसाइल है। जब खैबर की मिसाइल गई तो ये घबराने लगे, कहा ये वो मिसाइल नहीं है, ये हैदर कर्रार की मिसाइल है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद कर्रार की मिसाइल, खैबर की मिसाइल यहूदियों के पास पहुंची, यहूदी खत्म हो। एक मरहब यहूदी था जो अली के मुकाबिल में आया, उसे भी खत्म कर दिया। उसके 4 भाई थे, वो भी मारे गए। जो भी अली के मुकाबिल में आया है वो मारा गया है। अब जरा सोचिए, वो भी तो अली का बेटा है, खामनाई, जिसे हम कहते हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, आप भी अली के बेटे हैं। अली और नबी इस पूरी उम्मत के बाप है, पूरी उम्मत के अली और नबी बाप है। अब जरा इंसाफ से बताइए, अगर 2 बेटों में झगड़ा हो जाए तो बाप का फर्ज है कि एक दूसरे को समझाए, लड़ाई न करना। बड़े बेटे को ज़्यादा समझाएगा कि आप बड़े हैं, वो छोटा है, आप हक न करें। तो अब जरा सोचिए कि जब बाप होते हुए समझा रहा है कि लड़ाई झगड़ा न हो, तो उम्मत के बाप 2 हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है नबी। तो ये कैसे मुमकिन है कि नबी के होते हुए लड़ाई हो, अली के होते हुए लड़ाई हो? का लड़ाई इसलिए नहीं हुई, लड़ाई इस बात की हुई, हक और बातिल की लड़ाई हुई। का लड़ाई किस लिए हुई? का जो भी अली के मुकाबिल में आया है वो मारा गया है, वापस नहीं गया है। जिसने अली से मुकाबला किया है वो मारा ही गया, कभी वापस नहीं गया है। का इसलिए मारा गया है, जो अली के मुकाबिल में आता है सिर्फ अली नहीं मारते, उसे अल्लाह भी मारता है, उसे अल्लाह ने भी मारा है। इस बात पड़े तो मेरे नबी इन्ना अल्लाह शाहिदुम मुबश्शिरुम व नज़ीर, हबीब आप नबी बनाकर भेजे गए, रसूल बनाकर भेजे गए। अगर यहाँ कोई नबी आता तो आप लोग क्या करते? आप लोग से पूछ लो, अगर कोई नबी यहाँ पर आता तो क्या करते? उसकी बात मानते आप? ये कहता कि देखो मैं खुदा की तरफ से नबी बनाकर भेजा गया, आप परवाजी में कि उसकी इताअत करिए, बस आखिरी बात, उसके बाद अपने मसाइल, उसकी इताअत करिए, आप परवाजी हो जाती। खुदा को मानिए, आप खुदा को मानते, काम उस पर ईमान रखिए, उस पर भी ईमान रखिए, आप पर वाजिब था। नबी आते हैं इसलिए उम्मत की इस्लाह करने के लिए, जहाँ इस्लाह नहीं होती वहीं उम्मत में नबी भेजा जाता है अल्लाह की तरफ से, और हर ज़माने में एक नबी आता था। तो जब जनाबे पैगंबर अकरम इस ज़माने में नबी आए, उनसे पहले भी आए, तो किस लिए आए? कहा इनकी हिदायत की जाए, ये राह रास्त पर आए ताकि ये हिदायत के लायक बने, ताकि ये मेरी इताअत करे। जो इंसान आएगा वो इताअत करेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप के ज़माने में नबी आपने नहीं देखा है, अगर जनाब आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आपका देखा हुआ है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के आप ज़माने में थे, जन्नत अगर आदम को मानते आप तो जन्नत वहीं पे मिल जाती, मर जाते आदम को मान लिया। जन्नत देखिए सस्ती थी, अल्लाह को माना, मर जाते जन्नत मिल जाती, जन्नत और महंगी हो गई। जितना नबी भेजता गया अल्लाह जन्नत उतनी महंगी कर दी। का आदम आए, आदम पर भी ईमान रखना है, अल्लाह पर भी ईमान, 2 काम हो गए। अब मर जाता तब जन्नत मिल जाती। कहा देखो हमने और नबियों को भेजा, नूह नबी आए, अब नूह पर भी ईमान रखना है, आदम पर भी ईमान रखना, खुदा पर भी। जन्नत महंगी होती जा रही है, जितने नबी आते गए उन पर भी ईमान रखना है। 1,23,999 नबी जब आ गए तो उन पर ईमान रखना है। जन्नत महंगी होते चली जा रही है। अगर खुदा को मान के मर जाते तो जन्नत सस्ती थी, अल्लाह ने अपने नबी को भेज दिया, अब उस पर भी ईमान रखिए। आखिरी नबी को भेजा, कहा इस पर भी ईमान रखिए। अब अगर नबी कहे कि अहले बैत को मानिए तो उस पर भी ईमान रखना। ये जन्नत महंगी होती चली जा रही है।
गदीर तक आ गए लोग कि गदीर में जब नबी ने कहा मौला भी मानिए इसको, आपने मौला भी माना। अगर चाहते थे अली से जान छूट जाती तो गदीर से पहले मर जाते, गदीर से पहले मर जाते। जन्नत इंसान के लिए महंगी होती जा रही है। एक नबी था, ईमान लाते मर जाते, खत्म हो जाती, जन्नत मिल जाती। अब 1,23,999 नबियों पर आप पर वाजिब है कि उनकी इताअत करें। जन्नत कितनी महंगी होगी, कहाँ तक पहुँच गई। फिर उसके बाद रसूल ने फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत करो, मवद्दत अख्तियार करो, ताकि जन्नत तुम्हारे लिए आसान हो जाए। जन्नत अच्छा ये बताइए कि जितने नबी आए हैं उनको सरदार नहीं बनाया, सरदार किसी को नहीं बनाया। शाफ़े नशद इसमें है, जबैत में साक़े कौसर ये है, फ़ातिह खैबर ये है, बोलते हुए कुरान किए हैं। जन्नत ये आसान हो गई अहले बैत के घराने में। खास सरदार हसन हुसैन बन गए, आप जन्नत आसान हो गए। ये फर्श अदा जन्नत है। नबी आए हैं आपकी इस्लाह के लिए। हम ये बात जो बता रहे हैं आपकी इस्लाह के लिए, जो इंसान नहीं जानता उसको पता चलेगा कि जो हम फर्श अदा पर आते हैं किस लिए आते हैं। ताज़िया रखते हैं तो क्यों रखते हैं, ताज़िया शबी क्यों बनाते हैं। लोग कहते हैं शबी ना बनाइए बस आखिरी बार। तो हर चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। हमारी अगर बात अच्छी ना लगे तो कुरान के मुताबिक अमल करिए। कुरान की तो बात अच्छी है, कुरान पे इनकार नहीं कर। अपने नबी की बात मानिए, नबी के बात के ऊपर अमल करिए कि नबी ने जो बताया उस पर अमल करना है। ये ताज़िया हम क्यों बनाते हैं, शबी क्यों बनाते हैं। लोग कहते हैं शबी बनाना बिदअत है, ये क्यों बनाते हैं। आप ये ज़रा बताइए, मस्जिदें थी? हाँ नहीं थी। खाने काबा की ये शबी है मस्जिद, इमाम हुसैन की है शबी ताज़िया। जैसे खाने काबा की है शबी मस्जिद, मस्जिद खाने काबा को देख के बनाई गई है, वैसे हुसैन की शबी हम ताज़िया बनाते हैं। हमें दुनिया ने हमको मारा है, हर जगह हम मार खाते हैं, मजलूम है कौम। ये शिया कौम मजलूम है। हमें जब चाहा लोगों ने मारा, लोगों ने सताया। आज भी देखिए अमेरिका हमला ईरान पर कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि जहां कौम है ये शिया, इनको मिटा दिया जाए, इनको मिटा दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। अगर हम खत्म हो जाते तो पहले खत्म हो जाते। हमको अगर मिटाना चाहते हो तो दो काम करना पड़ेगा। का दो काम क्या करना पड़ेगा? का एक खाने काबा को पहले मिटाओ, फिर एक मस्जिद को मिटाना पड़ेगा। का ऐसा क्यों करे? का करना पड़ेगा। का खाने काबा इसलिए मिटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें अली आया था, उसमें अली आया था, इसलिए मिटाना पड़ेगा। का मस्जिद क्यों मिटानी पड़ेगी? जब मस्जिद मिटाएंगे उसमें अली गए थे नमाज पढ़ने के लिए। ये जब दो चीज मिटेगी तो शिया कौम मिट जाएगी। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। शबी है नहीं है, खाने काबा शबी है मस्जिद की। इमाम हुसैन की ताज़िया भी शबी है। बस आखिरी बात ताज़िये के ऊपर है, रोज़े इमाम हुसैन जिसको हम शबी बनाते हैं। बात आखिरी है, ये ताज़िया हम कहाँ लेकर जाते हैं? अपने काबू पर उठाते हैं हुसैन की शबी कहाँ लेकर जाते हैं? जब इंसान मर जाता है तो कब्रिस्तान ले जाया जाता है। क्यों? ये मर चुका। इमाम हुसैन की शबी हम करबला ले जाते हैं। ये करबला हम क्यों लेकर जाते हैं? जो इंसान मर जाता है उसे हम कब्रिस्तान ले जाया जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? ये मर चुका है, इसे कब्रिस्तान में ले जाके दफन करेंगे। ताज़िया कब्रिस्तान क्यों नहीं लेकर जाते हैं? करबला क्यों लेकर जाते हैं? यही तो हम बताना चाहते हैं कि जो जी कर इंसान मर जाए उसे कब्रिस्तान लेकर जाया जाता है, और जो मर के जिंदा हो जाए उसे करबला लेकर जाया जाता है। सलवात पढ़े इमाम हुसैन ने कि हम मरने के बाद भी जिंदा, तो मर जाता उसे कब्रिस्तान ले जाए, जो मर के जिंदा हो जाए उसे करबला ले जाए। अदादारों, इमाम हुसैन ने खत लिखा हबीब इब्न मज़ाहिर के, सबकी सदा के लिए बुलंद किया हल बिन नासिर जन्नत। पूरी कौम, पूरी इंसानियत के लिए जुमला है कि जो भी इंसान चाहता है कि हुसैन की मदद करने के लिए करबला पहुंच जाए। ये नहीं कहा कि सिर्फ हमारे शिया आएंगे मदद करने। जो भी चाहता है हुसैन की नुसरत के लिए वो आशूर से पहले करबला। हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा गया, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है,
अगर बेवतनों की मदद करना चाहते हो तो असर आशूर से पहले करबला पहुँच जाओ, वरना असर क़यामत मुलाकात होगी आपसे। तारीख बता दी कि हबीब इब्न मज़ाहिर करबला पहुँचे, इमाम हुसैन का साथी, बचपन का दोस्त करबला जा रहा है। और किस लिए जा रहा था? हुसैन की मदद करने के लिए। तारीख बताती है कि करबला का सबसे पहला शहीद जनाब मुस्लिम इब्न अकील है। जब मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार किया गया, तारीख बताती है कि बनी हाशिम का अकेला तरहा मुस्लिम इब्न अकील इमाम हुसैन का चदादाद भाई असर तक जंग करते रहे। प्यासे मुस्लिम इतने प्यासे थे, प्यास की शिद्दत थी कि लबें कटी हुई थी। अदादारो तारीख बताती कि मुस्लिम को जब दरबार में लाया गया तो किसी ने कहा मेरे अमीर को सलाम नहीं किया है। एक मरतबा जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर हुसैन इब्न अली है, मैं हुसैन इब्न अली को सलाम करूँगा। अदादारो तारीख बताती है जनाब मुस्लिम ने वसीयत की, कहा मेरी वसीयत ये है कि मैं मकरूज़ हूँ, मेरे ज़ीरा बेच देना और उसका कर्ज अदा कर देना, और एक खत लिखना कि मौला हुसैन कूफा ना आए, ये कूफा रहने के काबिल नहीं है। अदादारो सिर्फ इसलिए जनाब मुस्लिम नहीं कह रहे, इमाम हुसैन के साथ घर वाले भी हैं। अदादारो तारीख बताती है कि जनाब मुस्लिम को जब ये हुक्म दिया कि मुस्लिम को शहीद कर दिया जाए, दारुल अरवा करने करके और जाने के बाद जनाब मुस्लिम ने मोहलत मांगी कि 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। इधर जनाब मुस्लिम ने नमाज अदा की है। अदादारों अपने सरों को झुकाइए और हुसैन की गुर्बत का मरसिया पढ़िए, हुसैन की गुर्बत पे रोइए। यही याद कि आंसू आपके लिए निजात है, यहाँ पे नजात नहीं है, महशर के मैदान में नजात है। जनाब मुस्लिम को जब दारुल अमानत से गिराया गया, तारीख बताती कि मौला हुसैन ने अब्बास को करीब बुलाया, कहा अब्बास जरा करीब आओ। इमाम हुसैन ने 2 उंगलियों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहा देखो अब्बास को नजर आ रहा है। एक मरतबा कहा देखा एक शख्स है बड़ा प्यासा नजर आ रहा है, बड़े प्यासा नजर आ रहा है। एक मरतबा कहा पहचानो ये कौन है? कहा ये तो मुस्लिम इब्न अकील है। कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए जाके मुस्लिम को बचा लूं। अदादारों तारीख बताती है कि अब्बास को इजाजत न मिली, अब्बास देखते रहे। कहा आका एक बार इजाजत दीजिए कि हम जाके कूफा मुस्लिम को अपनी आगोश में ले ले। अदादारों तारीख बताती है कि आका ये बताइए जब जनाब मुस्लिम ऊपर से नीचे आएंगे तो उनको अपने आगोश में कौन लेगा? कहा इतनी इजाजत दे दीजिए कि हम जाके कूफा पहुंच जाए और मुस्लिम को अपने हाथों में ले ले। एक मरतबा इमाम हुसैन ने उंगलियों के इशारे से नीचे की तरफ दिखाया, कहा जनाब अब्बास जरा करीब आओ और देखो देखो नीचे कौन नजर आ रहा है। एक मरतबा हजरत अब्बास की निगाह जब जमीन पे पड़ी, का एक सहीफा बैठी हुई है जो मुस्लिम का इंतजार कर रही है। अदादारो इमाम हुसैन ने कहा ए अब्बास आपने पहचाना ये कौन है? कहा हमारी माँ फातिमा ज़हरा है। अदादारो उधर मुस्लिम चले हैं, जब मुस्लिम आए हैं तो फातिमा ने अपनी आगोश में ले लिया है। अब्बास उधर देख रहे हैं कि आका आपने मोहलत न दी, जाके मुस्लिम को आपके भाई को बचा लूं। अदादारो तारीख बताती है जब बाप शहीद हो जाता है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं। जनाब मुस्लिम की बच्ची को बुलाया गया, एक संदूक आया, उसमें से 2 नन्ही नन्ही बालियां निकाली और निकालने के बाद मुस्लिम की बेटी को पहनाया। एक बच्ची तन्हा खड़ी देख रही थी जिसका नाम सकीना था। एक मर्तबा तमाचा मारना शुरू किया। अरे जब करबला का वो मंजर आया होगा, अरे 11 मुहर्रम का जब मंजर आया होगा, जब हुसैन की शहादत के बाद शिब्र जब खैमों में पहुंचा होगा, अरे कुछ नजर नहीं आता था। अरे मुस्लिम की बेटी को हुसैन ने अपने हाथों से 2 बूंदे पहनाए थे। अरे सकीना को जो गोहर पहनाए गए थे, अरे शिब्र करीब आया होगा और एक जुमला कहा होगा, ए बच्ची ये गहवारे मुझे दे दे, ये गोशवारे मुझे दे दे। एक मरतबा बच्ची ने जैसे चाहा कि गोशवारे उतारे जाए, अब गोशवारे उतरे ना। एक मरतबा शिब्र आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद एक तमाचा सकीना के मारा, सकीना जमीन पे गिरी। आवाज दिए चचा अब्बास हमारी मदद को आइए। अदादारों सकीना से संभला ना गया। अदादारों तारीख बताती है जब खैमे जल गए, जब असाब शहीद हो गए, जब बनी हाशिम शहीद हो गए, एक बच्चा खैमे की तरफ से निकला और निकलने के बाद फुरात की तरफ पहुंचा है और पहुंचने के बाद एक मर्तबा अब्बास के लाशे पर पहुंचा और अब्बास का लाशा हिला हिला के कह रहा था, अरे अब्बास उठो, अब्बास उठो, आपकी बहनों की
चादरें सरों से छीनी जा रही है। अरे आपकी भतीजी तमाचे खा रही है, अरे कोई बचाने वाला नहीं है। सकीना फरियाद कर रही है, ए चचा अगर आप होते तो हमारे सरों से चादर न छीनी जाती, चचा अगर आप होते तो खैमों में आग न लगती, ए चचा अगर आप होते तो सकीना तमाचे नहीं खाती। वसयालम अल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम मुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।